اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 14 رمضان المبارک 1443 ہجری، 16 اپریل 2022 عیسوی، 3 گتے بیساکھ 2069 بکرمی، شنیچر کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں، اور ہر سنیچر کے دن لائیو پروگرام آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستو، یہ رمضان المبارک 14 دن گزر گئے۔ جو لوگ اللہ کی رحمتوں، مغفرتوں اور بخششوں کو لوٹ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان نیکیوں اور ان نعمتوں سے ابھی تک دور ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں 2 سالوں سے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہر پروگرام کا YouTube چینل بھی بنایا جاتا ہے جس کا نام صدائے حق ہے۔ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ دعوتی کام میں تعاون حاصل ہو سکے۔ یہ پروگرام ابھی آپ کی خدمت میں ریڈیو کے ساتھ ساتھ فیس بک ID محمد مستقیم مدنی اور جنک نندنی FM، ان دونوں پر لائیو پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اس میں جڑے ہیں بہت سارے بھائی یونک سے، یہ بھی جڑے ہیں، محمد صغیر عالم صاحب جڑے ہیں، محمد ظہیر الدین صاحب جڑے ہیں۔ محمد ظہیر الدین لکھتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں شیخ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ روزے کے متعلق سوالات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور لوگ روزوں کے مسائل تلاش کرنے کے لیے اور ڈھونڈنے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، محمد صغیر عالم صاحب لکھتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شیخ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تک کسی بھائی کا سوال نہیں آ رہا ہے تب تک میں جو کچھ باتیں گزشتہ ہفتہ رہ گئی تھیں ان کا تذکرہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ کون ایسی چیز ہے جو روزہ میں کرنا جائز ہے اور جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ غفور انصاری صاحب بھی جڑے ہیں، ماشاءاللہ، اور بہت سارے لوگ جڑے ہیں، گلاب شیخ بھی جڑے ہیں، اور بہت سارے ماشاءاللہ جڑے ہیں۔ سوالات کریں، انشاءاللہ تعالی جوابات دیے جائیں گے۔ روزے کی حالت میں یا کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو گزشتہ ہفتہ میں نے کی تھی۔ تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے میں پھر کہہ دوں کہ بھول چوک سے کھا پی لینا، اس سے بھول چوک سے اگر کوئی کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جس وقت یاد آئے تو یاد آنے کے بعد اگرچہ منہ میں لقمہ ہے تو اس کو پھینکنا ضروری ہے، اور اگر یاد آنے کے بعد اگر کھا لیا تو وہ جو ہے روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ یونک سے لکھتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یوگا کرتے ہو کیا؟
रोज़े की हालत में ब्लड टेस्ट करा सकते हैं? हाँ, आ रहा है, उसकी भाषा आ रही है, लेकिन बयान कर दूं कि रोज़े की हालत में अगर इलाज के लिए ब्लड निकालने की ज़रूरत पड़ी, ब्लड टेस्ट, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, अलबत्ता किसी को डोनेट करने से, खून अगर किसी को डोनेट कर रहा है 1 पाव, 1 किलो, आधा किलो, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। उसको चाहिए कि पहले वो रोज़ा तोड़े, उसके बाद किसी दूसरे को दे, नहीं तो हो सकता है कि उसको परेशानी हो सकती है, गशी आ सकती है और बहुत बड़ी परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन टेस्ट के लिए एक सिरिंज लेना या थोड़ा बहुत लेना और उससे टेस्ट करना, उससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। गुलाब शेख लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फ़र्ज़ नमाज के पहले की सुन्नत बाद में पढ़ सकते हैं? देखिए, फ़र्ज़ नमाज से पहले कुछ सुन्नतें शरीयत ने मुतय्यन की हैं, जैसे ज़ोहर की नमाज से पहले 4 रकात 2-2 करके 4 रकात पढ़ें, ज़ोहर के बाद 2 रकात, इसी तरीके से जो है मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात, फजर से पहले 2 रकात। अगर किसी वजह से अगर छूट गई आपकी पहली की सुन्नत, तो आप उसकी क़ज़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नफली नमाज में उसका शुमार होगा, उसमें कोई मुश्किल की बात इंशाअल्लाह तबारक तआला नहीं है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। क्या सुन्नत पढ़ने के दौरान जमात खड़ी हो जाए तो क्या करें? सुन्नत छोड़ दें? अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं और जमात खड़ी हो गई तो आप पर चाहिए, ज़रूरी है कि वो अगर आपको यकीन है कि हमारी रकात नहीं छूटेगी, तो आप बहुत जल्द सुन्नत से फारिग हो जाएं, और यानी अगर इसमें है, क़याम में है, तो रुकू सुजूद करके सलाम फेर लें। अगर आपको यकीन है कि हम इस तरह से सुजूद और रुकू वगैरह करेंगे तो हमारी रकात छूट जाएगी, तो आपको फिलफौर उसको छोड़ना ज़रूरी है और जमात में मिलना ज़रूरी है। और बेहतर यही है कि जो ही इकामत हो जाए तो आप छोड़ दें और उसमें नमाज में जमात में मिल जाएं। अल्लाह आलम बिस्सवाब। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भूल चूक से खा पी ले तो उससे रोज़ा टूटेगा नहीं, लेकिन जिस वक्त याद आए उस वक्त छोड़ना ज़रूरी है। और अगर याद आने के बाद खा लिया तो उसको क़ज़ा करनी पड़ेगी, उसका रोज़ा नहीं होगा। एक बात याद रखें कि मुफ़त्तिरात में, यानी रोज़ा टूटने वाली चीज़ों में 3 चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। पहली चीज़ कि वह काम जानबूझ के किया हो, मुतअम्मदन किया हो। दूसरा ये कि याद रखते हुए किया हो, जैसे खा रहा है तो जानबूझ के ही खा रहा है, लेकिन याद है कि नहीं रोज़ा, ये बात, तो उसको याद होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ कि वो शख्स मुख्तार हो। मुख्तार का मतलब यह है कि उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी गर्द गुबार उड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, हम जा रहे हैं, नाक में अगर गर्द गुबार घुस गई या आटा गूंद रहे हैं, आटा हलक में घुस गया, तो उसके इख्तियार में नहीं है ये, बल्कि वो जो है यानी ऊपर से उसके इख्तियार में नहीं, बिला इख्तियार वो चीज़ दाखिल हो गई, तो इसलिए उससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। अल्लाह वालम बिस्सवाब। मोहम्मद मतीउर रहमान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरी चीज़ कि मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे मिसवाक जिस हिस्सा में भी करें। आप मगरिब से 10 मिनट पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। मिसवाक करना बेहतर है और मिसवाक करने से कोई परेशानी नहीं है, उससे कोई हर्ज की बात नहीं, चाहे वो जिस टेस्ट की मिसवाक हो। तीसरी चीज़, पेस्ट और सादा मंजन कर सकते हैं बिला तंबाकू वाला, जैसे टूथपेस्ट होता है, लाल दंत मंजन है, और भी जो चीज़ें आ रही हैं वो, लेकिन उसके लिए बेहतर यह एहतियात का तकाजा कि आप अपने चेहरा को नीचे करके ब्रश करें ताकि हलक के अंदर उसका हिस्सा न जा सके। लेकिन अगर सिर्फ मिसवाक ही पर इक्तफा करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह आलम। गुलाब शेख लिखते हैं कि इफ्तारी की जो दुआ अल्लाहुम्मा लका सुम्तो व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतो सही है या क्या? देखिए, अल्लाहुम्मा लका सुम्तो व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतो ये हदीस सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, ये साबित नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो है ज़हबत ज़मा वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह ताला। ये दुआ पढ़ के आप बिस्मिल्लाह करके ये दुआ पढ़ के आप इफ्तार कर सकते हैं, इफ्तार कर सकते हैं। बहुत सारे भाई कहते हैं
کہ یہ افطار کے بعد کی دعا ہے، ذهبت الظما وطلت العروق، یہ افطار کے بعد کی دعا. یہ کس نے ان کو کہہ دیا کہ افطار کے بعد کی دعا؟ اور بڑے بڑے مولوی علماء اور بڑے بڑے دقاق بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اشتہار میں لکھتے ہیں کہ بسم اللہ کہہ کے افطار کریں اور افطار کے بعد ذهبت الظما وطلت العروق پڑھیں. یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حدیث میں جو آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر فیقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، ذهبت الظما وطلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالی. یہ بعد میں جو لوگ کہتے ہیں وہ بلا دلیل کہتے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی دلالت کرتا ہے کہ یہ بعد میں ہونا چاہیے، حالانکہ اس عالم کو جاننا چاہیے کہ جو چیز یقینی ہوتی ہے، اکثر یقینی چیز میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. قیامت کا دن یقینی ہے تو اکثر جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے. اور جیسے رحمہ اللہ کہتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں رحمہ اللہ، ماضی کا صیغہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، حالانکہ معنی ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا، لیکن اتنا یقین ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحم پہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر رحم کرے گا. اس یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ، سمجھے، اکرمہ اللہ، اس طرح سے کہتے ہیں. تو ماضی کا صیغہ سے یہ نہیں آپ کو بھرم ہونا چاہیے کہ اس سے ہمیں جو ہے افطار کے بعد کی یہ دعا ہے، یہ نہیں، بلکہ افطار کے وقت کی یہ دعا ہے. اس لیے جو بھائی اس میں مجھے ایک بہت بڑے عالم محدث سے بھی اس موضوع پر گفتگو ہوئی تو وہ بھی بولے کہ یہ افطار کے بعد کی دعا. پھر وہاں کچھ اور عالم تھے جو ہمارے سپورٹ میں کہے کہ نہیں شیخ یہ تو بالکل غلط ہے. تو کہا کہ معنی اس پر دلالت کرتا ہے. تو معنی دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ جب ہم پیئیں گے تو ہمارا ضرور ہماری پیاس بجھ جائے گی اور ہماری رگیں جو ہے تر ہو جائیں گے اور سب اللہ تعالیٰ کے اجر ثابت ہو جائے گا. اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے. اس لیے یہ ماضی کا صیغہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. یہ بعد کی دعا نہیں ہے. بعد کی دعا الحمدللہ پڑھ لیں جیسے عام کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کی اصلاح ضروری ہے. اچھا، بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں گل کرتے ہیں اور بڑے ماشاء اللہ تبارک اللہ گاؤں گھر میں کہلانے والے مولوی ملا بھی گل کرتے ہیں روزے کی حالت میں. ان کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے، بلکہ ان کا روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے. اللہ ہی محفوظ رکھے. چوتھی چیز ہے کہ علاج کے لیے عام انجیکشن لے سکتے ہیں. انجیکشن دوا جو ہے جیسے انسولین ہے، پینسلین ہے، کھانسی کی دوا ہے، کرونا کی سوئی ہے، وغیرہ وغیرہ لے سکتے ہیں. یہ ہم بیان کر چکے تھے لیکن پھر بھی میں ضمنی طور پر بیان کر دے رہا ہوں. لکھے ہیں علاؤالدین سلفی. اب علاؤالدین سلفی کی کیا؟ ہاں، علاؤالدین سلفی لکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باوضو آدمی اگر دودھ پی لے تو اس پر کلی کرنا ضروری ہے یا نہیں اگر وہ نماز میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے؟ دیکھیے، کلی کر لے تو بہتر ہے، اس لیے کہ چکناہٹ رہتی ہے دودھ پینے کے بعد منہ میں، تو جب نماز میں بھی کھڑا ہوگا تو اس کی زبان ادھر ادھر ہوگی اور دھیان جو ہے اسی زبان کی طرف ہو جائے گا. تو اس لیے بہتر ہے، واجب نہیں اس پر، بہتر ہے کہ وہ کلی کر لے اور تب اطمینان سے نماز میں داخل ہو. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ افطاری کے ٹائم میں کچھ منہ میں رکھے رہتے ہیں اور مسجد میں دوڑ لگا دیتے ہیں نماز کے لیے، اور ادھر جماعت کھڑی ہے، نماز میں کھڑے ہیں اور زبان اس کی چلتی رہتی ہے. بہت مشکل والی بات ہے. پوری طرح سے منہ صاف کر کے آدمی کو نماز میں داخل ہونا چاہیے، شامل ہونا چاہیے، تاکہ اسے کسی چیز میں خلل نہ ہو، نماز سے دور نہ کر دے کوئی چیز. اللہ علیہ وسلم. پانچویں چیز ہے خود سے اگر قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی قے کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. چھٹی چیز، بحالت روزہ، نیند کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے، نائٹ فل ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے روزہ کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. باورچی ہے اگر اور سالن کا نمک ہوا نہیں ہوا زبان پر رکھ کے چک کر کے اس کو تھوک دے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اب آئیے تھوڑا ڈاکٹری ناحیے سے میں آپ کو بیان کروں کہ کون کون چیز کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اس سے پہلے مدینہ منورہ سے مولانا ظہیر الدین صاحب سوال لکھتے ہیں، نماز وتر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے اور دعا قنوت رکوع کے بعد پڑھنا افضل یا رکوع سے پہلے؟ دیکھیے، دعا اصل جن جگہوں پہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے،
उन्हीं जगह पर हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए। नमाज वित्र में हाथ उठाकर दुआ करना ज़्यादा बेहतर है और ये अक़रब इलल क़बूल है, कबूल के करीब है, तो हाथ उठाकर दुआ करना चाहिए। अगर कोई हाथ न उठाए तो उसमें भी कोई मुश्किल की बात नहीं है। और दुआए क़ुनूत रुकू से पहले भी पढ़ना अफजल है, रुकू के बाद भी पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा लोगों में मशहूर है रुकू के बाद, लेकिन ज़्यादा जो असह है, साबित है, वो रुकू से पहले है। तो अगर कोई रुकू के बाद कर रहा है तो भी बेहतर है, रुकू से पहले कर रहा है तो भी बेहतर है। किसी पर नकीर करना जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोग बगैर सोचे समझे लड़ाई उखाड़ देते हैं और फतवाबाजी कर देते हैं कि ये गलत है, ये हराम है, ये फ़लाँ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह वालम सवाब। हमसे जुड़े हैं एक हमारे नए भाई आशिक खान साहब, ये नए जुड़े हैं। अल्लाह ताला इनके मालो दौलत में बरकत अता फरमाए और स्वागत है उनका। और इसमें जो है मरहबा है हमारी इस महफिल में। आप सवाल करें, इंशाअल्लाह तबारक तआला जवाब दिए जाएंगे। और मेरा नंबर मैं भूल गया कहना, वही नंबर पुराना है जो गुज़श्ता हफ्ता हुआ था, 98 17 83 71 12। 98 17 83 71 12 ये मोबाइल नंबर है। इस पर फ़ोन करेंगे तो हमारे पास सवाल आ जाएगा। 98 17 83 71 12। और बाहर से जो कोई फ़ोन करना चाहते हैं तो वो शुरू में 000977 जोड़ देंगे तो हम तक आपका सवाल आ जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, अब आइए थोड़ा डॉक्टरी नाहिए से बताऊं कि कौन कौन सी चीज़ करने से रोज़ा फासिद नहीं होता। पहली चीज़ ये कि आँख और कान में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता है। दांत उखड़वाने से या दांत का इलाज कराने से रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से जो किसी को जो ये है दिल का मरीज़ है वो, और दिल में जो परेशानी होती है और धड़कन तेज़ हो जाती है या दर्द होता है, तो एक टैबलेट दी जाती है ज़बान के नीचे रखने के लिए। तो वो टैबलेट ज़बान के नीचे रखने से रोज़ा नहीं टूटता है, अगर हलक के अंदर न घोंटे न जाए तब। अगर हलक के अंदर चला गया तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से औरत की शर्मगाह में चेक करने के लिए जो कैमरा डाला जाता है या और भी तरह से डॉक्टर उसको जो चेक करते हैं, डॉक्टरनी वगैरह, तो उससे भी कोई हरज की बात नहीं, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से शर्मगाह में पेशाब के रास्ते में जो कुछ डाल करके डॉक्टर लोग चेक करते हैं, चाहे औरत हो मर्द हो, तो उससे जो है रोज़ा नहीं टूटता है, उससे परेशानी नहीं होती है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मोहम्मद सगीर साहब लिखते हैं कि अज़ान होती रहती है और पानी पीता रहता है, यह सही है सहरी के वक्त? देखिए, ये उस शख्स के लिए कहा गया है कि जो है उठा लेट से और अज़ान शुरू हुई, अज़ान हो रही, तो उसको चाहिए कि वो एक गिलास पानी पी ले या जल्दी अज़ान तक ख़त्म कर ले, लेकिन नाक तक वो ठका करके खाए हुआ भी है सहरी, और हाथ में गिलास लेवा कर जब अल्लाह अकबर कहेगा तब हम गिलास से पानी पिएंगे, तो ये बेहतर नहीं है। हालांकि रोज़ा उसका फासिद नहीं होगा, लेकिन ये बेहतर नहीं है। अगर लेट से आदमी मुअज्जिन अज़ान दे रहा है तो मुश्किल की बात है, लेकिन इन चीज़ों में एहतियात बरतना चाहिए। हमें अज़ान से 2 मिनट 3 मिनट पहले ही तैयार हो जाना चाहिए वज़ू करके। अल्लाह वालम सबब। यूनिक से लिखते हैं कि रोज़े की हालत में छोटा परेशान करता सकता, मैं समझा नहीं सवाल क्या कर रहे हैं। रोज़े की हालत में छोटा परेशान कर सकते हैं, अब क्या कह रहे हैं मैं समझा नहीं, आप थोड़ा वाज़ह करके लिखिए, मैं आपका सवाल नहीं समझा। अच्छा, इसी तरीके से है कि हमने बयान किया कि रोज़े की हालत में दांत उखड़वाना जायज़ है। बहुत सारे लोग दांत की सफाई करवाते हैं, वो भी जायज़ है, लेकिन शर्त यह है कि हलक के अंदर दवा न जाए। इसी तरीके से कुल्ली करना और जो गरगरा करते हैं डॉक्टर लोग जो देते हैं हलक के लिए, तो ज़्यादा हलक तक अंदर न जाए, तो हल्का अगर गरगरा करे तो उससे कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि हलक के अंदर जो जाए उसको घोटे ना। इसी तरीके से बीमारी की हालत में ऑक्सीजन लेने से रोज़ा फासिद नहीं होता है, या किसी को
जो है हल्का घाव या कोई भी चीर चार करने के लिए जो वहाँ सुन्न किया जाता है दवा दे करके, उससे भी रोज़ा टूटता नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर ऑक्सीजन में या और भी कोई चीज़ उसमें अगर कोई दवा लगा करके अगर अंदर डाले तो उससे रोज़ा टूट जाता है, उससे रोज़ा टूट जाता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल इलाज के लिए जो है किया जा रहा है। तो इस तरीके से पेट में जो पाइप डाल करके चेक करते हैं और उसमें कैमरा डालते हैं, अगर उस पाइप में अगर कोई मादा लगा दिया है, कोई उसको महलूल अरबी में कहते हैं, तो वो अगर लगा दिया है तो उससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। अगर नहीं लगाया है तो इस चेक से कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो इस सारी चीज़ें जो है सारी चीज़ों से कोई मुश्किल की बात इंशाअल्लाह ताला नहीं। छोटा ऑपरेशन, अच्छा छोटा ऑपरेशन से कोई मुश्किल की बात नहीं है। हमने कहा ना कि अगर सुन करने के लिए कहीं पे ज़ख़म है, कुछ है और उसको सुन करके वहाँ पर उसको चीरा जा रहा है तो उससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई मुश्किल की बात नहीं है। नाक से अगर खून निकल गया, नकसीर निकल गई या कहीं एक्सीडेंट हो गया तो थोड़ा बहुत खून निकल गया तो उससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला रोज़े में कोई खलल नहीं हो सकता है। अल्लाह वालम बिस्सवाब। ये है उन चीज़ों का तज़किरा जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। अब आइए थोड़ा मैं आपको बताऊं कि कुछ बातें हैं जो जैसे कि मौलाना अब्दुल अजीज़ सलफ़ी मझौरा मुहतरी से सवाल किए कि क्या हाइज़ा औरत मैयता को, यानी औरत मुर्दा औरत को गुस्ल दे सकती है कि नहीं दे सकती है। तो उसका जवाब ये है कि हाइज़ा औरत मैयता औरत को गुस्ल दे सकती है। हाइज़ा अगर औरत है यानी हैज़ की हालत में अगर वो है तो वो गुस्ल दे सकती है, उससे कोई हरज की बात नहीं है। जब वो जिंदा को गुस्ल दे सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एतकाफ़ में बैठे रहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाने के बाद अपना सर मुबारक सुराख होकर के माँ आयशा के रूम में कर देते। माँ आयशा हैज़ की हालत में कंघी करती थी, सारा कुछ करती थी। तो उससे जब नापाक नहीं तो एक मुर्दा को गुस्ल करने में कोई मुश्किल की बात नहीं है। नापाकी की जगह ख़ास है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई शरई ममानत नहीं है। इसी तरीके से हाइज़ा औरत अपने शौहर को जब वो मर जाए तो गुस्ल दे सकती है, इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। यहाँ तक कि जुम्बी आदमी जिस पर जनाबत का गुस्ल वाजिब है, नापाक है, अगर वो भी उसके अलावा कोई नहीं मिल रहा है मैयत को गुस्ल देने के लिए तो वो भी गुस्ल दे सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह वालम बिस्सवाब। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब लिखते हैं क्या औरत हैज़ की हालत में बयान सुनने के लिए मस्जिद में आ सकती है? देखिए, ये तो सुनने के लिए मस्जिद में ना आए तो बेहतर है, उस साइड में कहीं बैठी रहे आंगन वगैरह में। हाँ, जिसको मस्जिद का हुक्म है उसमें ना जाए तो ये बेहतर है। तकाज़ा यही है, एहतियात का तकाज़ा यही है कि वो बाहर ही बैठ करके सुने। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि माँ आयशा को कि ज़रा मुझे चटाई ले आओ, तो मस्जिद से चटाई ले आती थी। तो बहुत सारे उलमा कहते हैं कि मुरूर या कोई सामान लाने के लिए जाए तो कोई मुश्किल, लेकिन ज़्यादा देर तक बैठना, ज़्यादा देर तक रुकना, ये मस्जिद के एहतराम के ख़िलाफ़ है। इसलिए अगर बयान हो रहा हो, दर्स हो रहा हो तो किसी साइड में बैठ करके वो सुन सकती है। तो ये एहतियात का यही ज़्यादा तकाज़ा है। अल्लाह वालम बिस्सवाब। एक आदमी ने सवाल किया है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हिंदी में सवाल आया है कि शेख मैं रहमत महथौर मधुबनी से सबसे पहले आपको और सदाए हक़ की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद। यकीनन ये आप लोगों की कोशिशों का ही नतीजा है कि इस दौर में सदाए हक़ की सदा वहाँ बुलंद हो रही है जहाँ अक्सरियत अहले कुफ्र की है। अल्लाह आप सब की जद्दोजहद को कबूल फरमाए, आमीन। चूँकि ये रमज़ान का महीना है शेख, इसलिए मेरे चंद सवाल के जो रमज़ान से मुतल्लिक़ हैं सवाल के जवाब दें। तो इधर आने से पहले मैं चाहता हूं कि इधर जो कुछ भाई सवाल किए हैं फेसबुक पे, गुलाब शेख लिखते हैं कि हैज़ की हालत में कुरान मजीद पढ़ सकती है? हाँ, पढ़ सकती है।
पढ़ सकती है, मोबाइल में पढ़ सकती है, जो याद है उसको पढ़ सकती है, लेकिन कुरान छू करके न पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे उलमा ने हराम करार दिया है। तो आजकल तो सहूलत है माशाअल्लाह, मोबाइल में है, मोबाइल में देख करके पढ़ सकती है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। मोहम्मद सगीर आलम साहब, जो रमज़ान में धल्ले से खाता पीता है तो इसके लिए क्या हुक्म है? धड़ल्ले से जो खाता पीता है उसके लिए क्या हुक्म है? वो अल्लाह के साथ बगावत कर रहा है, बेला उज़्र के, न बीमार है न मुसाफिर है, और धड़ल्ले से खा पी रहा है, रमज़ान महीने का कोई एहतराम नहीं, तो मतलब ये कि वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ खुली बगावत कर रहा है, और वो इस रुकन के साथ मजाक कर रहा है, इस रुकन के साथ मजाक कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें रमज़ान का रोज़ा रखना हमारे ऊपर वाजिब है, ये रुकन है। और जो लोग बिला उज़्र शरई ऐसा नहीं करते हैं, उसका क्या गुनाह है एक रुकन तोड़ने का, वो तो सारे लोग जानते ही हैं। तो इसलिए बिला उज़्र हमें रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। और जो लोग एहतराम नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं कि हम थोड़े गरीब हैं, हमको खाने पीने की थोड़े कमी है कि हम रोज़ा रहें, भूख में परेशान हों, तो ये तो और मज़ीद इस्लाम के साथ खुला मजाक कर रहा है। ये आदमी इस्लाम के साथ खुला मजाक कर रहा है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह वालम बिस्सवाब। 98 17 83 71 12, 98 17 83 71 12 ये नंबर खुला हुआ है। इस नंबर पर आप कॉल करके जो है हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, रहमत महथौर मधुबनी से जो सवाल किया वो ये है, क्या तरावीह की नमाज में कुरान करीम की तिलावत कुरान शरीफ देख के की जा सकती है? ये एक सवाल। दूसरा सवाल, क्या वित्र की नमाज में दुआए कुनूत के अलावा दीगर दुआएं पढ़ी जा सकती हैं? शेख मौसूफ से मुअद्दबाना गुजारिश है कि बराए करम इन सवालों के जवाब ज़रूर भेजें, बड़ी मेहरबानी होगी। पहले सवाल का जवाब, और पहला सवाल, क्या तरावी में देखकर कुरान की क़िराअत की जा सकती है? बेहतर तो यह है कि आदमी ज़ुबानी तौर पर कुरान की तिलावत करे। ये सिर्फ नफली की बात हो रही है, तरावी की बात हो रही है, फ़राइज़ की बात नहीं हो रही है। तो बेहतर यह है कि वो ज़ुबानी तौर पर याद हो तो वो पढ़े। लेकिन अगर कोई शख्स चाहता है कि पूरा कुरान हमारा सुने, हम सुनाएं मुक्तदी को, और मुक्तदी लोग भी चाहत में हैं और उसको पूरा कुरान याद नहीं है, तो वो कुरान देख करके नमाज पढ़ा सकता है। इसकी दलील है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक ग़ुलाम था, गालिबन ज़कवान नाम का। वो माई आयशा और उनके साथ और औरतों की इमामत कराते थे रमज़ान में, कुरान में मुसहफ़ में देख करके। इसको इमाम बुखारी ने मुअल्लक़न रवायत किया है और बिल्कुल जज़्म के साथ रवायत किया है। इसी तरीके से इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, कान ख़ियारुना यक़रऊना फ़िल मसाहिफ़ रमज़ान, कि हमसे भी अफजल लोग यानी सहाबा कराम कुरान में देख करके रमज़ान में तरावी की नमाज पढ़ा करते थे। इमाम नववी रहमतुल्लाह कहते हैं कि लौ क़राअल कुरान मिनल मुसहफ़ लम तब्तुल सलातुहु सवाअन कान यहफ़िज़ु अमला, कि अगर मुसहफ़ से यानी कुरान मजीद से देख करके कोई अगर नमाज पढ़ रहा है तो उससे कोई हरज की बात नहीं है, उससे कोई हरज की बात नहीं। अगरचे वरक़ उल्टाने की ज़रूरत पड़ जाए तो ये वरक़ उल्टाना ये बड़ा अमल नहीं है कि नमाज में जो है नमाज उसकी बातिल हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं, एतराज़ करते हैं कि कुरान उठा करके रखना और कुरान का पन्ना उल्टाना, वरक़ उल्टाना, ये बहुत बड़ा अमल है, इससे जो है रोज़ा फासिद होने का डर है, ये नमाज बातिल होने का डर है। लेकिन उस शख्स के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नतनी थी उमामा, तो उमामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े होते क़याम करते तो आप उनको गोद में उठा लेते थे, जब रुकू सजदा करते तो आप उनको ज़मीन पर रख देते थे। तो कुरान शरीफ का उठाना, तो उमामा जो एक बच्ची थी उसके उठाने से तो बिल्कुल हल्का है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये कहना कि ये बहुत बड़ा अमल है, ये सही नहीं है। इसलिए अगर कोई शख्स चाहता है या कोई मुक्तदी लोग चाहते हैं कि हम पूरा कुरान सुने, तो कारी को चाहिए, अगर याद नहीं है तो इत्मीनान से कुरान देख करके पढ़े, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, इससे कोई मुश्किल की बात नहीं है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह वालम बिस्सवाब।
गुलाब शेख लिखते हैं, कोई कुरान हिफ्स करके या कुछ सूरा याद करे और वो भूल जाए तो क्या उनके ऊपर गुनाह होगा? अगर वो, ये तो बहुत मुश्किल वाली बात है। आदमी जो है भूल जाता है तो और उसका एहतमाम नहीं करता है तो वो उस पर गुनाह हो सकता है, उस पर गुनाह हो सकता है। चाहिए इंसान को कि जो हिफ्स करे उसको हमेशा याद रखे। कहते हैं कि कुरान मजीद बहुत जल्द याद भी होता है और बहुत जल्द इंसान भूल भी जाता है। बहुत जल्द याद करता है और बहुत जल्द भूल भी जाता है। अगर हम उसकी हिफाजत नहीं किए तो वो बहुत जल्द भूल जाता है। जैसे कि एक ऊँट अगर बांध करके न रखे तो वो कब भाग जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो उसी तरीके से जो है कुरान मजीद को हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए, उसके हिफ्ज़ को हमें बार बार दोहराना चाहिए। अल्लाह वालम सवाब। और अहमद साहब का दूसरा सवाल है, क्या कुनूत वित्र में मासूरा दुआ में इजाफा कर सकते हैं? तो देखिए, इस बारे में ये कहना है कि खैर का सारा पहलू उस दुआ में है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद है। उसमें अपनी तरफ से इजाफा करना जायज़ नहीं है। जैसे दरूद शरीफ है, तहियात है, दुआए सना है, वगैरह वगैरह। कुनूत वित्र में उसी दुआ पर इक्तफा करना ज़्यादा बेहतर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिखलाया था। लेकिन बाज़ रवायतों से साबित है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में कुनूत वित्र की दुआ पढ़ने के बाद, यानी अल्लाहुम्मा हदिना फ़ीमन हदैत पढ़ने के बाद दुश्मनों पर, मुल्हिदों पर, काफिरों पर लानतें भेजा करते थे। जैसा कि सही इब्न खुज़ैमा हदीस नंबर 1100 में बयान आया है कि अन्नन नासा अला अहद उमर कानू यलअनून अल कफर फिल निस्फ मिन रमदान, के उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में लोग जो है अहले कुफ्र पर 15 रमज़ान के बाद लानत भेजा करते थे और फरमाते थे, अल्लाहुम्मा क़ातिलिल कफ़रा अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिका व युकज़्ज़िबून रुसुलका व ला युमिनून बिवअदिका व खालिफ बैन कलिमतिहिम व अलक़ि फ़ी क़ुलूबिहिम रुअब व अलक़ि अलैहिम रिज़्ज़का व अज़ाबका इला अल हक़। इस तरीके से जो है दुआ कुनूत पढ़ने के बाद हज़रत उमर के ज़माने में सहाबा कराम और ताबईन कुछ इजाफा कर देते थे। तो अगर ज़माना का एतबार करके वक्त का एतबार करके अगर दुआए कुनूत में थोड़ा सा इजाफा अगर कर दे तो उससे कोई हरज की बात इंशाअल्लाह तबारक व तआला नहीं होगी। लेकिन इसमें याद रहे कि बहुत सारे लोग बहुत लंबी दुआएं करते हैं और जितनी दुआएं याद है सब कह देते हैं, इधर मुक्तदी परेशान हाल रहता है, तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। आज सऊदी अरब में देखेंगे माशाअल्लाह एक ये फ़न हो गया, एक हुनर हो गया कि फ़लाँ इमाम साहब इतनी अच्छी दुआ करते हैं और याद नहीं है तो किताब ही में देख करके काफ़िया और मुसज्जा मुक़फ़्फ़ा इबारत से गूंजती रहती है मस्जिद। तो ऐसा जो है करना जायज़ नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे खैर उसी में है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। मेरे भाइयों दोस्तों, अब मेरे पास तकरीबन 10 मिनट 12 मिनट बाकी रह गए हैं। अगर कोई भाई फ़ोन पर आना चाहते हैं तो 98 17 83 71 12 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप जवाब पा सकते हैं। गुलाब शेख का एक सवाल आया है कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, यह दरूद पढ़ सकते हैं? ये दरूद तो बनावटी दरूद है, ये लोगों ने खुद से बना लिया है। मेड इन इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश ये है, समझ गए। सहाबा कराम और अइम्मा कराम जब भी नाम आता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शॉर्ट कोट में पढ़ते थे और लंबी जो दरूद है जो दुआ में हम करते हैं। लेकिन अगर आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक के पास गया हुआ है और वहाँ ज़ियारत के लिए पहुँचा है तो वहाँ कैसे हम दरूद सलाम भेजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? तो अहले इल्म ने कहा है कि वहाँ हम पहले 2 रकात नमाज पढ़ें मस्जिद नबवी में, और अगर हो सके तो रोज़ा में नमाज पढ़ें, और उसके बाद हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक के पास आकर कब्र मुबारक के
قریب میں ان کی طرف منہ کر کے ہم کہیں کیا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ، اس طرح سے ہم ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سلام بھیج سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہاں موجود ہے، تو وہاں خطاب کا جملہ ہم لفظ لا سکتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو عربی میں یا اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اپنی امت کو خیر تک پہنچایا، آپ کی نیکیوں کو دوبالا کرے، آپ نے اپنی امت تک ہر اچھائی کو پہنچایا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ درود سلام پڑھنے کے بعد پھر ابو بکر پر سلام پڑھے، پھر حضرت عمر کو سلام کرے، تو دونوں سے کہے کہ السلام علیکم یا ابو بکر، السلام علیکم یا عمر، آپ دونوں نے بڑا کرم کیا ہے اس امت پر، اور امت کے لیے بہت ہی جہاد کیا، بہت ہی کوشش کیا، وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن عام وقتوں میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ وہی لوگ کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، جو حاضر و ناظر مانتے ہیں، اور یہ بالکل یہ غلط عقیدہ ہے، ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ عالم الصواب۔ محمد صفی عالم صاحب لکھتے ہیں کہ غیر مسلم کے روزہ قبول ہوگی، روزہ مطلب یعنی روزہ کہنا چاہ رہے ہیں، غیر مسلم کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ غیر مسلم کا روزہ قبول ہوگا کہ نہیں، تو اس کا قبول نہیں ہوگا۔ کوئی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلم ہو، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے اور شرک اکبر سے دور رہے، یہ سب سے پہلی شرط ہے، سب سے پہلی شرط ہے۔ اگر یہ شرط پائی جاتی ہے تو الحمدللہ، اگر یہ شرط نہیں پائی جاتی ہے تو وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، جو بھی کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، کہ یہ لوگ جو بھی نیک کام کریں گے تو ہم ان کو اڑتی ہوئی راکھ کی طرح بنا دیں گے، کیونکہ کوئی عزت قدر نہیں اللہ کے یہاں ہوگی۔ اس دنیا میں ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے عزت دے، اس کے دولت میں اضافہ کر دے، یہ الگ بات ہے، لیکن قیامت کے دن اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ عالم ثواب۔ علاء الدین سلفی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شخص امام کے ساتھ 4 رکعت تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، پھر اس کو نیند آ جاتی ہے تو سو کر جاگنے پر بقیہ رکعات کی ادائیگی کرنے سے اس کی تراویح مکمل مانی جائے گی؟ ہاں، مانی جائے گی، اس کی تراویح مکمل مانی جائے گی، لیکن اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب اللہ لہ قیام لیلہ، کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، یہاں تک کہ امام واپس آ جائے، تو اس وقت تک اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کو پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص جو ہے نیند کے غلبہ کی وجہ سے یا اور بھی وجہ سے جو ہے آرام کرنے لگا، سو گیا، تو اس کی تراویح تو ہو جائے گی، پوری تراویح کا ثواب ملے گا، لیکن اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، جو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں سے کہنا چاہ رہے، بہت سارے لوگ 6 رکعت پڑھ کے 2 رکعت باقی رہتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، کوئی وتر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں، بلکہ جو حدیث میں آیا ہے کہ انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب اللہ لہ قیام لیلہ، کہ جو شخص امام کے ساتھ، امام کے سلام پھرنے تک، امام کے تراویح ختم ہونے تک اگر وہ امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے تو اس کو پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس پر میری بحث بھی گزر چکی ہے، جو گزشتہ 2 دن پہلے میں نے شیئر کیا تھا جو ہے گروپوں میں، تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں مفصل طور سے۔ اللہ عالم الصواب۔ گلاب شیخ لکھتے ہیں کہ تراویح کی نماز اگر کوئی 8 رکعت سے کم پڑھے اور وتر پڑھ لے تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، تراویح کی نماز 8 رکعت ہے، 8 رکعت ہے، ہاں، 2 کر کے 8 رکعت پڑھے، اور اس کے بعد 1 رکعت وتر پڑھے، یا 3 رکعت پڑھے، یا 5 رکعت پڑھے، وہ تو مشکل کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف 4 ہی رکعت پڑھے اور وتر کی نماز پڑھ لے تو اس کو اتنے ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نے پڑھا ہے، تو اس کو یہ ہم نہیں کہیں گے کہ تم نے تراویح کی نماز مکمل پڑھ لی، تم نے تراویح کی نماز ادھوری پڑھی ہے۔ تو اس لیے جو ہے آدمی کو چاہیے کہ یہ چند دنوں کے مہمان ہے یہ، اور اس میں جتنا ہمیں اللہ کی بخشش، رحمت اور مغفرت لوٹنا ہے لوٹ لیں، ہاں، اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، تھکاوٹ۔ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ تراویح چھوڑ کے بھاگتے ہیں، دکان میں بیٹھ کے دکان چلاتے ہیں، اسی طریقے سے ہوٹل میں بیٹھ کے گپ شپ ہانکتے ہیں،
बच्चों के पास बैठ करके जो है गप हाँक रहे हैं, रोड पर बैठ करके गप हाँक रहे हैं। अरे भाई, अगर तुम 10 मिनट और दे दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? तुम्हारे नामा माल ही में तो सारा इजाफा होगा। थकावट किस चीज़ में नहीं है। वो लोग खेती बाड़ी करेंगे, गेहूं काटेंगे इतने धूप में, बीज रोपेंगे, सारा कुछ करेंगे, साइकिल ठेल करके बिस्कुट बेचेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन परेशानी सिर्फ तरावी पढ़ने में है, परेशानी सिर्फ रोज़ा रखने में है, परेशानी सिर्फ नमाज पढ़ने में। तो ये हमारी बदकिस्मती है, ये हमारी बदकिस्मती है। और हमें अदम तौफीक की दलील है ये कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को तौफीक, नेकी करने की तौफीक नहीं बख्शी है। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब मैं चाह रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त रह गया है बाकी, कि रकात तरावीह, इस पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कि मेरे भाइयों देखिए कि लिख दिए हैं मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब के सलात व तस्बीह की नमाज है कि नहीं है। देखिए, सलात व तस्बीह जो है, इस पर अहले इल्म का बड़ा इख्तलाफ है, इसकी इस हदीस की सेहत और ज़ाफ़, बल्कि मौजू होने पर। बहुत सारे उलमा इस हदीस को मौजू करार देते हैं और कहते हैं कि सलात व तस्बीह सही नहीं है, जायज़ नहीं है पढ़ना। और कुछ उलमा इसको हसन करार देते हैं और कहते हैं वो जायज़ है। मेरा भी रुझान इसी तरफ है कि सलात व तस्बीह नहीं पढ़ना चाहिए। इसका जो है कोई सही हदीस से साबित नहीं है, अल्लाह आलम बिस्सवाब। उससे बेहतर नमाज हमारे पास मौजूद है, लोग नहीं पढ़ते हैं। जैसे चाश्त की नमाज है, सूरज तुलू होने के 10-15 मिनट बाद आप 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात पढ़े। चाश्त की नमाज बड़ा फजल और बड़ी फजीलत वाली नमाज है। बहुत सारे लोग इस नमाज को तो जानते भी नहीं है, ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान नेपाल में इस नमाज को जानते भी नहीं। तो चाश्त की नमाज सूरज तुलू होने के 10 मिनट या 15 मिनट के बाद आप वज़ू करें, 2 रकात नमाज पढ़ें, या 4 रकात पढ़ें, या 6 रकात पढ़ें, या 8 रकात पढ़ें। ये बहुत ही अफजलियत वाली नमाज है। उसके बाद तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद की नमाज का क्या कहना, लोग तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते और सलात व तस्बीह एक बार पढ़ने के बाद पूरे ज़िंदगी का गुनाह माफ़ करवाना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं, तहज्जुद की नमाज आप रात की तिहाई हिस्से में उठ करके आप नमाज पढ़ें, फजल ही फजल है, सब कुछ जो है फजल ही फजल है इसमें। अगर नहीं आप जाग नहीं पाते हैं तो आप इशा के बाद ही घर में हो, या इशा के बाद ही आप वित्र से पहले ही मस्जिद ही में पढ़ लें, वो भी क़याम लैल में शामिल है, अल्लाह तबारक तआला उसका सवाब अता फरमाएगा। इसी तरीके से जो है असर की नमाज से पहले आप 2 रकात 4 रकात पढ़ें, ये बहुत ही बेहतरीन नफली नमाज है। मगरिब से पहले 2 रकात पढ़ें, मगरिब के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद नफली नमाजें पढ़ें। तो ये सब नफली नमाजें हैं, इन चीज़ों का हमें एहतमाम करना चाहिए। और इसी तरीके से जो है नमाज मस्जिद में हम जाते हैं तो बैठने से पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ें। ये सारी चीज़ें अफजल नमाजें हैं, फजीलत वाली नमाजें हैं। इनके पीछे लोग नहीं पढ़ते हैं और हल्की चीज़ ढूंढते हैं, हल्की चीज़ ढूंढते हैं। तो हल्की चीज़ अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो मेरा मौजू जो है मैं मुफस्सल 14 किस्तों में हो गया है कि अमल मुख्तसर और अज्र बहुत ज़्यादा। इसको आप पढ़ें, ये 14वीं किस्त, और इंशाअल्लाह ताला 2 दिन में 15वीं किस्त आपके सामने आ जाएगी। तो आप उसको पढ़ें और बैठे बैठे छोटा सा अमल करके ज़्यादा सवाब पा सकते हैं आप नेक अमाल में। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अल्लाह आलम सवाब। मेरे पास तो अब टाइम नहीं बाकी रहा, 2-3 मिनट या 1 मिनट बाकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मा काना यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही अला 11 रका, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। वही रमज़ान में तरावी और उसी को गैर रमज़ान में तहज्जुद कहा जाता है, उसी को गैर रमज़ान में तहज्जुद कहा जाता है। अलग से कोई नमाज नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़ तरावी लफ्ज़ सहाबा कराम के बाद आया है। ये लफ्ज़, ये नाम पहले क़यामुल लैल, क़याम रमज़ान, इस तरह के नाम से सहाबा कराम में ये मशहूर था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में वही 8 रकात
اسی کو تہجد کہیے، اسی کو تراویح کہیے، اسی کو کچھ کہیے، تو وہی ہے نماز۔ اس سے زیادہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی نہیں پڑھی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 20 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میرے پاس وقت نہیں ہے، آئندہ ہفتہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی، اور کب سے لفظ تراویح آیا اور کیسے 20 رکعت دنیا میں آئی، 20 ہی نہیں بلکہ 36، 41 اور بہت سارے رکعتیں آئی، اس سب کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی۔ ایک غلاب شیخ کا سوال لے لیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے دوران سجدہ آ جائے تو کیا 2-3 سجدہ ایک ساتھ قرآن پڑھنے کے بعد ایک ساتھ پڑھ سکتے؟ نہیں، بلکہ جس وقت سجدہ کی آیت آئے اسی وقت ہم سجدہ کریں۔ جس وقت سجدہ کی آیت آئے اسی وقت ہم سجدہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ واجب نہیں ہے لیکن آپ سجدہ کریں، اور اس کے لیے بہت سارے علماء نے کہا کہ اگر با وضو ہے تو بہتر ہے، نہیں تو اگر نہیں وضو تو آپ بلا وضو بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے موبائل میں بلا وضو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور مصحف میں قرآن مجید میں پڑھنے کے لیے بہت سارے علماء نے کہا کہ وضو کرنا واجب ہے۔ تو اگر ہم موبائل میں پڑھ رہے ہیں اور اس وقت سجدہ آ گیا تو اس وقت ہم فوراً سجدہ کریں، یہ نہیں کہ 10، 15، 14 سجدہ جو ہے 14واں سجدہ ایک نے سوال کیا کل کہ پورے قرآن ہم نے ختم کر لیا اور 14واں سجدہ باقی ہے ہمارا، ہم کیا کریں؟ دیکھیے تو یہ تو زبردستی ہے۔ سجدہ ہم اسی وقت کریں جس وقت سجدہ کی آیت آئے، اسی وقت ہم کریں، لیکن اس کے اندر جو چاشنی ہے، اس کے اندر جو معنی ہے وہ الگ ہے۔ بعد میں ہم سجدہ کریں گے تو اس کا کوئی معنی مطلب نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سجدہ تلاوت جب آئے تو اسی وقت ہمیں سجدہ ادا کرنا چاہیے۔ اب میں آپ لوگوں سے رخصت ہو رہا ہوں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آئندہ ہفتہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جتنے بھائی سنے ہیں، سوال کیے ہیں، فیس بک پر آئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے روزے، نماز، تراویح اور ساری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اے اللہ جو ہم یہ محنت کر رہے ہیں اللہ اس محنت کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی ابھی بھی دور ہیں اس مبارک مہینے کے خیرات حاصل کرنے سے، ان کو توفیق ارزانی عطا فرمائے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے، تراویح اور قرآن کی تلاوت کرے۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان اور انسان پریشانیوں میں مبتلا ہے، اے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم بارش کے لیے ترس رہے ہیں، ہم بارش کے لیے پریشان حال ہیں، پوری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، جانور مر رہے ہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر تو اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، ہمارے اوپر تو بارش نازل فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔